Good morning, students. Good morning, all of you. Good morning, fifth standard. Welcome once again in the history period. Okay, this is your history period. Take out history books and keep a pencil in your hand always in my period. Okay, keep a pencil in your hand always in my period. Take out your books. Today we are going to learn the first lesson, and that is what is history. What is history? Okay, let's see. History, a science that tells us about events in the past. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ साइंस. क्या बताते हैं हमें? हिस्ट्री एक साइंस है जो किसके बारे में बताते हैं हमें? इवेंट्स इन द पास्ट, जो भी घटनाएं घट चुकी है पास्ट में, उसके बारे में हमें पता चलता है बाय स्टडिंग हिस्ट्री. ओके, now a science that tells us about events in the past, that is history. Last year in standard 6 we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. हमने लास्ट ईयर किसकी पढ़ेगी? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा. ओके, and his mission of establishing Swaraj. What is his mission? His mission of establishing Swaraj. स्वराज्य की संस्थापना करना. The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years ago. 400 years before now. और आज से शिवाजी महाराज कब होके गए? 400 years पहले. Okay, in the other words, the time 400 years ago. For our convenience we divide time in different ways. हमने टाइम को क्या किया है? डिफरेंट वेज में डिवाइड किया है. ओके, often we use words like now, sometime, ago, after some time, or today, yesterday, or tomorrow, or this year, next year, etc. Now the time that has already gone by is the past. जो वक्त जो पहले से ही चला जाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा टाइम कहेंगे? पास्ट कहेंगे. पास्ट. ओके, द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट. अभी हम हैं तो वो अभी मैं आई एम टीचिंग, दिस इज प्रेजेंट. ओके, प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम. यू आर लर्निंग इन फिफ्थ स्टैंडर्ड. ओके, यू आर लर्निंग इन फिफ्थ स्टैंडर्ड मीन्स फिफ्थ स्टैंडर्ड इज योर current time, present time, and your past was 4th standard, and your future was and your future will be 6th standard. Okay, very good. Now one more example. Today is in which tense? Present tense. Yesterday past tense, and tomorrow future tense. Okay, the time has already gone by is the past. The time that we are now is the present, and the time that is yet to come, जो अभी तक वक्त आया नहीं है, is yet to come is the future. The past includes many events that have already taken place. Okay, now the science that tries to understand past events is called history. History means what? The science that tries to understand, समझने की कोशिश करता है. किसके बारे में जानने की कोशिश करता है? पास्ट में घटी हुई घटना के बारे में. उसे हम क्या कहते हैं? उसकी पढ़ाई किस में की जाती है? हिस्ट्री में की जाती है. ओके, the scientific method of history. In standard 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted means परिचित होना, with various sciences. हमने बहुत सारे साइंस की पढ़ाई की. The special characteristics of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. Now let me explain about the scientific method. Scientific method means what? The method of using a number of different tests. यानी बहुत सारे टेस्ट लेना, इसके लिए टू डिटरमाइन यानी तय करने के लिए वेदर द एविडेंस यानी जो प्रूफ पुरावा हमारे सामने आया हुआ है वो विश्वास रखने लायक है या नहीं है. और ये जो मेथड काम करते हैं वो मेथड का क्या नाम है? साइंटिफिक मेथड. ओके, नाउ वंस अगेन, what is the scientific method? Scientific method means what? The method of using a number of different tests, यानी जांचा परखा जिसे कहते हैं ना वो. ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस यानी जो पुरावा हमारे सामने आया है हिस्ट्री से रिलेटेड वो उस पर हम विश्वास रख सकते हैं या नहीं रख सकते. समझो हमें एक कॉपर कॉइन मिला है, तो वो कॉपर कॉइन अभी का है, किसी ने अभी कोई पुराना कॉइन देख के उसके जैसा अभी बनाया है या सच में पुराना है, उसको एग्जामिन करके
हम उस पर विश्वास रख सकते हैं कि हाँ इस आदमी ने ये जो कॉइन लाया है, कॉपर कॉइन से मिला है, वो उस जमाने का है या अभी बनाया हुआ है। ओके, there are many things that happened since our birth that we may not know about. However, our grandparents and parents or others often tell us amusing stories of our childhood. Those stories are a part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हमारे बचपन के बारे में हमारी स्टोरी बताते हैं, कहानियां बताते हैं, लेकिन जो बात हमें हमारे मम्मी पापा से सुनने को मिलती है, अगर वही बात अगर हमारे नेबर्स जो है उन्होंने बताई, तो बात को एक्सप्लेन करने में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, है ना। तो इट मेक्स अस वंडर विच वन इज राइट, तो हमें आश्चर्य लगता है कि क्या सही है। वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। तो एक्चुअल घटना कैसे घटी होगी उसके बारे में फिर हम क्या करते हैं, तहकीकात करते हैं। उस समय और कौन प्रेजेंट था मम्मी पापा छोड़ के, और कोई था क्या, या कोई रिलेटिव्स थे क्या, उनको पूछते हैं, है ना। Now, it is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in the past. ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि घटना घट चुकी है फिर से वही हमें देखने को मिलेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. Even so, history uses the scientific method at every stage. लेकिन फिर भी हिस्ट्री कौन सी मेथड यूज करती है, scientific method, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence and while putting it together. यानी हिस्ट्री यूज साइंटिफिक मेथड व्हाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस, जब वो कोई बात के लिए प्रूफ कलेक्ट करती है या फिर कोई एविडेंस को एग्जाम करती है, या फिर एंड व्हाइल पुटिंग इट टुगेदर व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प इज आल्सो टेकन फ्रॉम अदर साइंसेस। दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हिस्ट्री ये थ्रू इमेजिनेशन से लिखी नहीं जा सकती है, सच में क्या हुआ होगा उसके बारे में जानकारी लेकर ही हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। लेकिन कहीं सुनी बातों पर भी विश्वास रखना हम रख नहीं सकते, है ना। हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स यानी पुराने जो वस्तुएं हैं, वो स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered over many generations etc. are the sources of history. So the sources of history कौन से हैं? Ancient objects यानी पुराने अगर कोई खिलौने मिलते हैं या वस्तुएं मिलती है, वो कोई स्ट्रक्चर्स यानी कोई इमारत, मॉन्यूमेंट, कोई स्मारक है, कोई पुरानी बिल्डिंग्स है। स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां। पॉट्स बर्तन, कॉइन्स, all of you are well aware. inscriptions means छपा हुआ, inscription means छपा हुआ, ठीक है, जिसमें छापा रहता है या कोई ना कोई पिक्चर रहता है, कोई राजा का पिक्चर रहता है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पिक्चर रहता है। ओके, इंस्क्रिप्शंस। कॉपर प्लेट्स, तांबे की प्लेट जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, लिखावट रहती है। बुक्स, मैनुस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ताम्रपत्र, भूर्जपत्र से के ऊपर। ट्रेडिशनल स्टोरी जो है एंड सॉन्ग जो है, जो हम सुनते आ रहे हैं फ्रॉम अवर लास्ट जनरेशन, हमारे जनरेशन से, ऑल दीज आर called sources of history. The sources of history are three types: material sources, written sources and oral sources. Okay, now the study of science help us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment. Environmental science जो है वो किस पे स्टडी करता है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के ऊपर जो एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो किसी का भी हो, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एनवायरमेंट से, जैसे पोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, उसके बारे में स्टडी करता है। या फिर फ्लोरा एंड फौना, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे बारे में, फ्लोरा एंड फौना मींस प्राणी और वनस्पति जगत। ओके, उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, पोल्यूशन एक्सेट्रा, एंड लुक्स फॉर देयर सॉल्यूशन, और उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी निकालते हैं। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी, और जैसे ये एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंट की स्टडी करता है, वैसे हर एक बात का क्या है, अपना साइंस है, विज्ञान है। हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट, उसी तरह से हिस्ट्री जो है वो किसकी पढ़ाई करता है, स्टडीज द इवेंट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में घट चुकी जो घटनाएं हैं उसके बारे में
पढ़ाई किसमें की जाती है? हिस्ट्री में. ओके, हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट. Individual or collective actions of human beings have consequences. They result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society. This affects our day-to-day life. For example, if the people of a village work together and help one another, the village makes good progress. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of its development. देखो, what they said, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस. हमारी जो एक्शन होती है ना, उस पे परिणाम सामने आती है, चाहे वो हमने अकेले ने की हो, इंडिविजुअल की हो एक्शन, या फिर कलेक्टिव एक्शन हो, या फिर हमने सबने मिलके की हो, मास एक्शन हो. उसका परिणाम क्या होता है? दे रिजल्ट इन एन एनवायरमेंट. इसके ऊपर होता है एनवायरमेंट के ऊपर, that may be either favorable or unfavorable for the progress of society. फिर वो environment यानी जो रहता है वातावरण, वो सोसाइटी यानी समाज के लिए, समाज के फेवर में रहता है या फिर अनफेवरेबल रहता है. और उसका परिणाम किस पे होता है? हमारे डे टू डे लाइफ पे भी होता है. फॉर एग्जांपल, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर, समझो कोई विलेज है, उसके लोग इकट्ठा के काम कर रहे हैं, एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वो विलेज जो है वो अच्छी प्रोग्रेस करेगा, गुड प्रोग्रेस करेगा. However, if the people cannot come together, अगर लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, and it puts obstacles in the way of its development, तो वो अपने डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं? बाधा निर्माण कर रहे हैं, है ना. History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions and their consequences. तो हिस्ट्री क्या करती है? हिस्ट्री का ये प्रयास रहता है, हिस्ट्री tries to find out answers. तो कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स? टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडिंग. स्टडिंग यानी पढ़ाई करके, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, यानी जो हमारे पहले जो हमारे पूर्वज होके गए, जो एंसेस्टर थे, वो किस तरह से सोचते थे, देयर एक्शंस, और वो किस तरह से काम करते थे, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर उसका नतीजा क्या होता था. The study of history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. Human society के लिए what is good or bad, what is favorable or unfavorable, इसका पता हमें कैसे चलता है? Through the study of history. Okay, history does provide us with guidelines, यानी हिस्ट्री हमारा क्या करती है? मार्गदर्शन करती है. Then by studying history, we learn about the progress of human civilization. यानी हमारी प्रोग्रेस किस तरह से हुई है, ये बात का पता हमें चलता है इससे, बाय लर्निंग हिस्ट्री. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग, और लोगों ने किस तरह से लोगों के जीवन में क्रांति आई है, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसके बारे में भी पता हमें कहाँ से चलता है. वी कम टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू हिस्ट्री. ओके, देन यानी हमारी उत्क्रांति कैसे होके गई. पहले व्हील का शोध लगा, है ना. व्हील यानी क्या? व्हील यानी चाक या फिर चक्र, और वो चक्र से जैसे जैसे उस व्हील की गति बढ़ती बढ़ गई, वैसे वैसे हमारे भी प्रोग्रेस क्या वो होती गई, है ना. राइट. नाउ एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री. It tells of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization. Human civilization is मानवीय संस्कृति, and of the scientists who made those discoveries. Every village, city, district, state and country has its own history. हर एक विलेज की, देश की, जिले की, राज्य की अपनी क्या है? हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है. Similarly, the earth, its monuments, water bodies, the animal world, mankind, all have their own history. Every science too has a history. It tells of the many scientific discoveries. बहुत सारे scientific discoveries के बारे में हमें पता चलता है. That brought about important changes in human civilization. और वो scientific discovery ने हमारे जीवन के ऊपर क्या परिणाम हुआ है ना, हमारे जीवन में कौन से changes आए हैं, उसके बारे में बताता है. About many scientific discoveries that brought about important changes, okay, in human civilization, and of the scientists who made the discovery. और जिन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर तहकीकात की है, उनके बारे में भी हमें पता चलता है. The past and the future. The past, present and future are linked by a continuous chain of events. जाहिर सी बात है ना, एक चेन रहती है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. हमने ब्रिटिश के विरुद्ध क्या दी? फाइट दी. Why? To get independence. We wanted to free from the shackles of
Britishers. This is a historical action. Okay. As a result, India became an independent nation on 15th August 1947. हमने fight की और हम battle जीते और हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ. कब स्वतंत्र हुआ? कब? 15th August 1947 को. Okay. So we can say that independence was a consequence of an action, and that is the Indian people's struggle for independence. Indian peoples ने जो struggle किया independence के लिए, उसकी repercussion, उसकी reaction कौन सी थी? उसका नतीजा, what is the consequence of that? We got freedom, है ना? India was we got independence, right? Now in this way, the events of today are linked with past actions. यानी हमारे जो इवेंट है वो किससे जुड़े रहते हैं? हमारे पास्ट एक्शन से. अगर आप पढ़ाई करोगे, then you will get good marks, and then you will get good results, and then you will get good branches of learning, right? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे, है ना? यानी ये जो लिंक लगी हुई है, पहले पढ़ाई बाद में गुड रिजल्ट, you will get knowledge, right? आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, है ना? In this way, the events of today are linked with past action. When we understand this, we realize that the future depends on past events. और हमारा जो फ्यूचर है वो भी किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास्ट से डिपेंड करता है. यानी हमने जो काम करके रखा है उसी का नतीजा हमें मिलता है, उसी का फल हमें मिलता है. अगर आपने पढ़ाई की 10th में, 12th में या स्टार्टिंग से, आपको क्या मिलेगा? गुड रिजल्ट मिलेगा. अच्छा रिजल्ट मिलेगा 10th 12th में, आपको अच्छी ब्रांचेस मिलेगी, अच्छे आप जहां जाना चाहते हो वहां आप क्या करोगे? आगे जा पाओगे, राइट? दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. और यानी अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी, यू विल गेट गुड एम्प्लॉयमेंट, है ना? देन गुड रेम्यूनरेशन, यानी अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको, उसका नतीजा होगा. और आपके लाइफ जो है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो और अच्छा होगा, है ना? For example, we learn that man began to make tools from material available in nature, that he learned how to make use of fire, and that he invented the wheel. और हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, for example, we learn that the man began to make tools. हमने मनुष्य ने क्या बनाया? Tools, अस्त्र शस्त्र बनाए. किससे? पत्थर से. स्टार्टिंग में फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में मटेरियल अवेलेबल था उससे. दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर. बाद में उसने ये सीखा कि फायर का यूज किस तरह से करना चाहिए. एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील. एंड बाद में किसका शोध लगा? व्हील का. He invented the wheel. The next generations added to these developments. Technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man. टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की भी तरक्की हुई, है ना? दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इवन टुडे. इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट. आज जो इन्वेंट हो रहा है वो किसका परिणाम है? जो यानी पास्ट में जो डिस्कवरीज हुई है उसी का नतीजा है. ये आज बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शोध लग रहे हैं. इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल. ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज, ओके, एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट. हियर आवर लेसन इज ओवर, एंड इन द नेक्स्ट पीरियड we will solve question answers or exercise related to this lesson. Okay. Your homework is that read the lesson again and again, okay, and try to find out the answers given in the exercise. Bye bye.